from here. Suppose we have 3 point charges, each equal to q, placed on the vertices of equilateral triangle. लिखो. 3 point charges are placed on the vertices of an equilateral triangle, on the vertices of an equilateral triangle of side A, as shown in the figure. Find the net force acting, find the net force acting on the charge, placed at the vertex A, on the charge placed at the vertex A. Srishti, welcome. Open your camera. Samvit, Navika, everyone. और सृष्टि तुम घुमाई घर, होम टाउन. 3 point charges on the vertices of equilateral triangle. तीनों positive q है. You have to find force Sir, on. I'll have to turn off my camera. I'm traveling. अच्छा ठीक है. Okay. So we find the force on the charge placed the vertex A. कैसे करते हैं हम लोग? We basically determine the charges in the vicinity of the charge जिसमें हमें force निकालना है. So in the vicinity or in the neighborhood of charge A, कौन-कौन से charges हैं? We have charge at placed at B, we have charge placed at C. इन दोनों का तो magnitude निकालो पहले. FAB, force on A because of B, and force on A because of C. You find the magnitude of these two forces. Since सारे चीजें symbols के form में, charge is Q, side is A, K को you can let it be K only. K को K छोड़ देना. So between force on A because of B, क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 which is Q only, KQ square by A square, right? Similarly, force on A because of C will be also KQ square by A square. So as you can see, these two forces are equal in magnitude. हमने सिर्फ magnitude निकाला. अब आती है direction की बारी, because that is the most important part. Force on A because of B. Force on A due to B. तो जिस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है, हमें उसका मोशन देखना है. तो चार्ज ए या वर्टेक्स ए पे जो चार्ज रखा है वो कहाँ जाएगा? व्हाट इज द मोशन ऑफ दैट? देवेना, ये चार्ज इसकी वजह से कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स बी और अवे फ्रॉम बी. किधर जाएगा नंदिनी? हाँ. Away from me. जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है उसका मोशन देखना है. ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव की वजह से इल मूव अवे फ्रॉम इट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम आएगा ये. फोर्स ऑन ए डी टू बी, ये आ गया. सिमिलरली फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी. ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, तो ये चार्ज, इसका मोशन देखना है. जिस चार्ज पे फोर्स निकाल उसका मोशन देखना है. ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा नाविका? ये चार्ज कहाँ जाएगा इसकी वजह से? नाविका बताओ.
काव्या तुम बताओ. Further away from A is the Right, Navika, you are also right. So it will be like this. So this is the force on A due to C. This is how much? 60 degree. Equilateral triangle is also 60 degree. This is also 60 degree. So this is also 60 degree. तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं. वन इज बाय टेकिंग कंपोनेंट्स, और एल्स सिंस ओनली टू फोर्सेस आर देयर वी कैन आल्सो यूज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स. वेक्टर्स है ना, वेक्टर भी हम यूज कर सकते हैं, सिर्फ दो ही फोर्सेस हैं. सो इफ यू यूज दैट, नेट फोर्स ऑन ए कितना हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन ए वुड बी एफ ए बी होल स्क्वायर एफ ए सी होल स्क्वायर प्लस 2 FAB FAC cos 60. एक तो ये तरीका है. Or else what you can do is, since the two vectors are equal in magnitude and the angle between them is 60 degree, तो मैंने एक रिजल्ट बताया था तुम्हें. तो whenever two equal vectors in magnitude act at an angle 60 degree, the resultant is always √3 times each. तो ये भी तुम डायरेक्टली लिख सकते हो. So this would be √3 times each. That is, the net force would be KQ square by A square times √3, and it would be acting at a perpendicular bisector. इन दोनों का एंगल के बीच का एंगल. So this would be basically perpendicular to BC also. This is the net force acting on perpendicular to BC. This is your final answer. And this force will be the same on each charge. हर Q पे same force लगेगा. At any stage, if you have any doubt, feel free to ask. Because level of questions फिर बढ़ते जाएंगे, difficulty level बढ़ता जाएगा. सर डायरेक्शन में हम जे कैप लिख सकते हैं. हाँ, वो लिख सकते हो, लेकिन फिर तुम यहाँ पे एक डायग्राम बनाओगे छोटा सा, x and y. Then teacher will understand, yes, it's along J cap. ओके सर. ठीक है, क्लियर? काव्या, देविना, नंदिनी. अब दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका है रिजॉल्विंग फोर्सेस. बिकॉज मान लो दो फोर्सेस की जगह तीन फोर्सेस होते तो फिर हम क्या करते हैं? In place of two forces, if you have three forces, then we have to take help of resolving forces. Suppose a force F is acting like this. These are two mutually perpendicular directions. ये angle theta है. तो हम किसी भी वेक्टर को, it's not only for force, it could be some electric field, it could be some magnetic field, कुछ भी हो सकता है, any वेक्टर. किसी वेक्टर को तुम्हें रिजॉल्व करना है तो उसका जो कंपोनेंट है along थीटा, वो हमेशा कितना होता है? F cos theta. If you want to resolve a vector into two mutually perpendicular components, जो थीटा के साथ वेक्टर होगा, कंपोनेंट होगा, हमेशा कॉस होता है, और दूसरा कौन सा होगा? एफ साइन थीटा. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एफ को हटा दें, इसको हटा के इन दोनों को भी लिख सकते हैं, एंड दीज आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन. थीटा के साथ हमेशा कॉस होगा. जैसे कि मान लो एक फोर्स है, some force is there which is, ये क्या हो रहा है? I'm not able to write. ये अपने आप डिसअपियर क्यों हो रहा है? मान लो ये फोर्स होता, क्या हो गया सर पता नहीं. पेन चूज कर लो. पेन, पेन की वजह से हुआ है. यस सर. राइट. तो मान लो कोई फोर्स है 10 न्यूटन, ठीक है, 10√3 न्यूटन ले लेता हूं. ये एंगल है सपोज 30 डिग्री. सो इस फोर्स के दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो सकते हैं. एक कंपोनेंट होगा ये वाला थीटा के साथ वाला. थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस होता है. तो दिस कंपोनेंट, इसको आई कॉल इट Fy.
वाई डायरेक्शन में ना, तो ये कितना हो जाएगा 10√3 कॉस 60। ये मत सोचना कि हॉरिजॉन्टल कॉस होता है, एंगल के साथ वाला कॉस होता है। तो कॉस 30 होगा ना हाँ cos 30 लिखा है। सर, बिल- आपने 60 बोला है। अच्छा सॉरी। सो दिस cos 30 कितना होता है √3/2। √3/2। दैट मीन्स दिस कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स कितना हो गया 15 न्यूटन। वाई डायरेक्शन में 15 न्यूटन एक्ट कर रहा है। ये वाला कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा एंगल के दूसरा वाला, दिस वुड बी से Fx एंड दिस वुड बी 10√3 sin 30। सो 10√3 sin 30, sin 30 होता है 1/2। सो इट वुड बी हाउ मच 5√3 न्यूटन। तो कहने का मतलब दो फोर्सेस 5√3 न्यूटन एंड 15 न्यूटन अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलरली एक्ट करें, उनका रिजल्टेंट 10√3 होगा 30 डिग्री विद वर्टिकल। बट इफ समबडी सेज नहीं मेरे को ये वाला एंगल नहीं लेना है, आई वांट टू टेक द अदर एंगल, कौन सा, ये वाला, तो अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा इस बार, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वुड बी 10√3 3 cos न्यूटन। 60। cos 60 कितना होता है 1/2. 1/2। आंसर वही आएगा 5√3। तो विच एवर एंगल यू टेक, जो एंगल तुमने लिया उसका साथ वाला कॉस होगा। ये हो जाएगा 10√3 sin 60 बिकॉज दिस टाइम द एंगल इज दिस sin 60 √3/2। तो आंसर वही रहेगा 15 न्यूटन। सो द सेम क्वेश्चन, अगर सपोज दो से ज्यादा फोर्सेस तो डेफिनेटली रिजॉल्व करना पड़ेगा, अभी करते हैं वो भी क्वेश्चन। दो फोर्सेस में तुम डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हो और एल्स यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। जैसे इसी को अगर तुम्हें रिजॉल्व करके सॉल्व करना होता तो क्या करते हैं हम, ड्रॉ टू डायरेक्शंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, ये 30 है तो ये एंगल 60 हो जाएगा, राइट। और ये भी 60 हो जाएगा। देखो दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज 60, दिस 60। अगर ये 60 है तो ये भी 60 है। ये कौन सा एंगल कहलाते हैं, इनका कोई नाम था, याद आ रहा है। नहीं, एडजसेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट, Vertically opposite. कॉरेस्पॉन्डिंग। वर्टिकली ऑपोजिट कैसे हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट कैसे हो गया। अच्छा ऐसा कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। ये का एंगल का क्या नाम था, 9th 10th में तुमने किया था ये। कॉरेस्पॉन्डिंग। यस, है ना। तो 60 डिग्री हो गया ये था वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। ये और ये था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो अगर मैं एफ ए बी का कंपोनेंट लेता हूं तो ये हो जाएगा एफ ए बी, ये डायपोल में भी काम आएगा जब हम डिराइव करेंगे, एफ ए बी कॉस 60। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा एफ ए बी साइन 60। सिमिलरली एफ ए सी का ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ ए सी कॉस 60 एंड ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ ए सी साइन 60। ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, दे विल कैंसल आउट एंड दीज साइन कंपोनेंट्स विल बेसिकली एड अप। आंसर वही आएगा। देखो अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो जाएगा एफ ए सी साइन 60 √3/2 होता है, प्लस एफ ए बी साइन 60 √3/2 होगा। ये दोनों इक्वल है ना। तो एक ही लिख देते हैं, तो एफ ए सी √3 हो जाएगा। तो तुम्हें रिजॉल्व करना भी आना चाहिए और पैरेललोग्राम मेथड को यूज करके रिजल्टेंट निकालना भी आना चाहिए। इसको एक बार देख लो, फिर इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। तो शिष्य तुम अभी आ रही होगा, अच्छा कहाँ है तुम्हारा होम टाउन। सर टाउन नहीं गई थी अच्छा एक्चुअली ऐसे ट्रिप पे गए थे। चलो गुड। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। लिखो इन द प्रीवियस क्वेश्चन
if in the previous question another charge capital Q, if in the previous question another charge capital Q is placed at the center of the triangle, at the is placed at the centroid of the triangle, capital Q है charge, ठीक है? then find net force, first part on the charge at A, second part on the charge at the centroid, The first was charge at A. हाँ, net force on the charge at A, and the second part net force on the charge at the centroid. डायग्राम बड़ा सा बनाना, अच्छा साफ। इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ए, ये भी साइड ए हो गया, दिस इज सी, दिस इज क्यू, और सेंट्रॉइड पे हमने सेंट्रॉइड को नॉर्मली जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस कर दिया है। व्हाट इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, नंदिनी? सर सर बताओ। मुझे पता है, मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड। ओके, व्हाट इज अ मीडियन, टेल मी। हाँ ओके, मीडियन जब वो एक पॉइंट से जो उसके ऑपोजिंग का मिड पॉइंट से Midpoint, if you join vertex of a triangle, with the midpoint of the other side, it is a median, ठीक है? ये मीडियन होता है। दिस इज मिड पॉइंट, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंड दिस इज द मिड पॉइंट डी, दिस इक्वल टू दिस। तो जितने भी मीडियंस होती हैं, 3 मीडियन होती हैं, तीनों की तीनों मीडियन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। इट इज ऑल्सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्राइंगल, तुमने रोटेशन में पढ़ा था। इसकी खासियत ये होती है सेंट्रॉइड की, हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये रिजल्ट काम आएंगे। Centroid is point of intersection of medians, and it divides a median in the ratio 2:1. लिख लो, 2 है towards vertex वाला, 1 है towards midpoint वाला। Centroid always divides a median in the ratio 2:1, 2:1 में डिवाइड करता है। दूसरी बात, किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को तुम ज्वाइन करके एक और ट्रायंगल बनाते हो, तो उसका भी सेंट्रोइड सेम होता है। जो एक छोटा ट्रायंगल बना ना मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, उसका भी सेंट्रोइड जी ही होगा। सो ट्रायंगल ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स also has the same centroid as a bigger triangle। ABC और DEF का सेम सेंट्रोइड होगा। अब इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, ये भी बहुत जरूरी है याद करना। ये ए है, ये A है, दिस इज 2:1। तो अगर तुम मीडियन बनाओगे इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो मीडियन परपेंडिकुलर भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, और साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। सारी चीजें हो जाती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। मीडियन इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर एंड इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड। तो अगर ये साइड ए है ट्रायंगल का, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, a/2 हो जाएगा। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस ऑल्टीट्यूड? इसकी लेंथ बता सकते हो कितनी आएगी पाइथागोरस यूज करके? कर लो या a/2 के यस, इफ यूज पाइथागोरस
ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ये ए बाई टू है A. बेस, तो दिस इज ऑलवेज रूट थ्री ए बाई टू। ये पूरा ऑल्टीट्यूड की हाइट लेंथ है, ठीक है, तीनों ऑल्टीट्यूड सेम हाइट के होंगे। अब सेंट्रोइड हमारा इसको 2:1 में डिवाइड करता है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी होगी? ये भी रिजल्ट तुम्हें याद करना है क्योंकि बार बार काम आएगा। A square ठीक by है। हम्म A square नहीं, root A square by 2 and देखो, ये वाली डिस्टेंस इज द सेम एज ये वाली डिस्टेंस, तीनों इक्वल है। इसको मैं आर लेता हूँ फॉर अ A मोमेंट। by root। ये एंगल 60 है, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी हो गया, कितना हो जाएगा एंगल 30 डिग्री। ये राइट ट्रायंगल नजर आ रहा है, इस राइट ट्रायंगल में बेस मालूम है मुझे, हाइपोटेन्यूज नहीं पता है ना? तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं? टी रेशो कॉस 30 यूज कर लो। कॉस 30 कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 30 होता है √3/2 ए बाई टू आर, राइट? टू से टू कट गया, आर कितना आ गया? आर आ गया a/√3। ये रिजल्ट तुम्हें याद करना है। अब स्ट्रेट अवे याद कर लो, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसका साइड ए होता है, वर्टेक्स से सेंट्रोइड का डिस्टेंस a/√3 होगा। इन एनी ट्रायंगल विच इज इक्विलैटरल, वर्टेक्स टू सेंट्रोइड डिस्टेंस ऑलवेज a/√3। बहुत बार यूज होगा ये, हर बार इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, वी रिमेंबर द रिजल्ट। दूसरी बात, ये डिवाइड हो रहा है 2:1 में, तो ये इसका आधा हो जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? इसकी आधी, a/2√3। और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो √3a/2 आ जाएगा। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस a/√3, साइड का मिड पॉइंट विद सेंट्रोइड a/2√3, उसका आधा हो जाता है। ये रिजल्ट बिल्कुल साइड में करके हाईलाइट कर लेना, बार बार काम आने वाला है ये, बिकॉज हमें इस क्वेश्चन में ये डिस्टेंस चाहिए होगी। अब तुम्हें पता लग गया AG BG CG, ये तीनों डिस्टेंस कितनी हो गई? a/√3। अब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेट फोर्स ऑन ए निकालो पहले। A Q by 3A square। नेट फोर्स ऑन ए, हाँ, नेट नेट फोर्स निकालना हाँ नेट फोर्स ऑन ए है। के सराउंडिंग में तीन चार्जेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहला, हाँ, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ द वर्टेक्स ए। एक फोर्स लगेगा F ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, एक फोर्स लगेगा F ऑन ए बिकॉज ऑफ सी, एक फोर्स लगेगा F ए बिकॉज ऑफ चार्ज एट सेंट्रोइड। जी, तीन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकालो पहले, फिर डायरेक्शन देखेंगे, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे। FAB FAC तुम ऑलरेडी कर चुके हो, KQ² / A² होगा, है ना? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस A है। दिस इज ऑल्सो KQ² / A²। ये वाला हो जाएगा K Q Q बाय डिस्टेंस कितना है हमारा, ये वाला, दिस इज a/√3 का स्क्वायर, दैट इज 3KQ/A²। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब डायरेक्शन की बारी। डायरेक्शन कैसे करेंगे?
Sir, it will be perpendicular only, right? हम्म The final also. यस अब जरा देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. एफ ए बी फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव इसकी वजह से रिपेल होगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे. एफ ए बी फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ सी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, दिस ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डन. एफ ए सी, इन दोनों का हमने रिजल्टेंट भी निकाला हुआ था. नाउ फोर्स ऑन क्यू बिकॉज ऑफ कैपिटल क्यू, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इट विल बी लाइक दिस एफ ए जी. अब इफ आई प्रोड्यूस इट फर्दर डाउन तो बीसीसी के परपेंडिकुलर होगा ये लाइन, ठीक है. दिस इज परपेंडिकुलर टू बीसी. तो वी हैव, या तो हम इसको रिजॉल्व करें, है ना, या हम वो डायरेक्टली वो कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, इन दोनों का के बीच का एंगल 60 है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो ये जाएगा √3 टाइम्स, है ना, और फिर वो एफ ए जी में ऐड हो जाएगा. या फिर हम ये कर सकते हैं, पूरा का पूरा रिजॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हैं. एफ ए जी इज ऑलरेडी इन द वाई डायरेक्शन, है ना, एफ ए जी इज ऑलरेडी इन द वाई डायरेक्शन, तो उसको रिजॉल्व नहीं करना है, सिर्फ एफ ए बी और एफ ए सी को रिजॉल्व करना है. तो दिस इज 60 डिग्री, this is 60 degree, this is FAC cos 60, FAC FAB cos 60. These two will cancel because they're equal and opposite. और ये दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे फोर्सेस, FAB sin 60, FAC sin 60. तो नेट फोर्स ऑन ए कितना हो गया, इट वुड बी FAG, एंड सिंस FAB FAC आर इक्वल तो 2 टाइम्स कर दो उसको. नेट फोर्स ऑन ए वुड बी FAG कितना होगा, KQ कैपिटल Q बाय, ये किया हुआ है तुमने, 3 ऊपर आ गया. दिस इज 2 FAB KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर cos 60 इज sin 60 था, सॉरी, cos कॉम्पोनेंट कैंसिल हो गया ना, √3/2. क्या कॉमन आ रहा है, √3 KQ upon A square. KQ बाय A स्क्वायर, √3 भी कॉमन ले सकते हो, हाँ. तो इल बी √3 प्लस 1 √3 capital 2 Q plus plus small normal Q. q. Yeah. Yeah. And the direction perpendicular to BC. Direction is quite important. नाविका, कोई डाउट है तो पूछ लेना, नंदिनी, देविना. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के न्यूमेरिकल तुम्हें ढंग से इजीली हो जाएंगे, देन यू विल फील वेरी कंफर्टेबल इन इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज, एंड डायरेक्शन इज आल्सो सेम वे. अब इसका सेकंड पार्ट क्या था, नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंट्रॉइड. करो एक बार खुद से. Sir, will it not be zero? हम्म Will it not be या zero? विल बी जीरो, बट कैसे हो रहा है वो पूरा शो करना है, तुम्हें बताना है. तो अगर हम दो फोर्स से उनका उल्टा हो तीनों जाए फोर्स, देयर विल बी 3 फोर्सेस. सिर्फ कंपोनेंट्स लेके करना. हाँ, कंपोनेंट लेके शो करो, तीनों फोर्सेस निकालो, उनको रिजॉल्व करो, टेक टेक योर ओन टाइम. FGA FGB FGC, force on the center Q, center charge Q would be, 3 चार्जेस सराउंड कर रहे हैं इसको, तीनों की वजह से फोर्स निकाल लो, उनके डायरेक्शन देखो, अच्छा सा डायग्राम बनाना, सुंदर सा बढ़िया, और फिर इसको अलग से रिजॉल्व करके दिखाओ.
तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है ना, ये आ रहा होगा, यही है 3 k q/a²। नाउ द क्वेश्चन इज इनकी डायरेक्शन कैसे करनी है। एफ जी ए, फोर्स ऑन जी बिकॉज ऑफ ए, किससे पूछूं मैं, सृष्टि तुम बताना, फोर्स ऑन जी बिकॉज ऑफ ए, डायरेक्शन, Self हाँ डायरेक्शन ऑफ, minus the reflection. नहीं इसी में बता दो मेरे को कि लाइक इट बी टुवर्ड्स ए और अवे फ्रॉम ए, It लाइक would be away from A. यस, so that means this direction is like this, यहाँ लिख देता हूँ मैं एफ जी ए, अवे फ्रॉम इट ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव अवे जाएगा, इसका मोशन देखना है। एफ जी बी बताओ काव्या, एफ जी बी, फोर्स ऑन जी बिकॉज ऑफ बी, Away from Q towards AC. यू कैन से अलोंग बी जी, है ना, Okay. अलोंग बी जी, एफ जी बी। नाविक का बताना, एफ जी सी का डायरेक्शन, एफ जी अवे फ्रॉम सी, ठीक है, अवे फ्रॉम सी ये भी हो सकता है वैसे, अलोंग सी जी लिख दो, है ना, वो बेटर है, एफ जी सी। तीनों का डायरेक्शन मिल गया, मैं इसको दोबारा यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ बढ़िया से ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं। एफ, ये अलग तो कोई डायरेक्शन ही नहीं था। आई ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दिस इज एफ जी बी, दिस इज एफ जी सी, दिस इज एफ जी ए, से दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, दिस इज जी। तीनों फोर्सेस को मैंने शो कर दिया। तीनों फोर्सेस एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, पूरा एंगल 360 होता है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 120, ये भी 120 और ये भी 120, राइट। तीनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल भी हैं, तो ऐसा तो मैं रिजल्ट मालूम है, इफ थ्री वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट 120 120 120 ईच, नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो। लेकिन वी कैन शो इट बाय रिजॉल्विंग ऑल्सो। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हुआ 30, ये भी 30। एफ जी बी का कॉम्पोनेंट ये वाला कितना हो जाएगा, एफ जी बी कॉस 30, ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा एफ जी बी का, एफ जी बी साइन 30। एफ जी सी का ये कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, एफ जी सी कॉस 30, ये एफ जी सी कॉस 30 और एफ जी बी कॉस 30, दे विल कैंसल आउट बिकॉज दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। एफ जी सी का ये वाला कॉम्पोनेंट कितना होगा, एफ जी सी साइन 30। तो आफ्टर रिजॉल्विंग सिर्फ जो फोर्सेस अब नजर आ रहे हैं वो तीन फोर्स नजर आ रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, दिस प्लस दिस एंड दिस, साइन 30 हाफ होता है, तो एफ जी सी बाई टू एफ जी बी बाई टू दोनों को ऐड करोगे एफ जी बी आ जाएगा, वो एफ जी जी को कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स विल बी जीरो। दैट मीन्स चार्ज एट द सेंटर विल बी इन इक्विलिब्रियम, उस पर नेट फोर्स जीरो लगेगा। मान लो कैपिटल क्यू की जगह माइनस क्यू होता, फिर क्या होता आंसर, लिख लो उसी में, इफ द चार्ज द सेंट्रोइड इज नेगेटिव इन नेचर, if the charge at the center is negative in nature, how would your answer change, how would your answer change? Same with that. तीनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, लेकिन नेट फोर्स Net zero. जीरो ही रहेगा। अगर सेंटर पे नेगेटिव चार्ज होता, अगर सेंटर पे नेगेटिव चार्ज होता तो फिर क्या होता, ये चार्ज अगर नेगेटिव होता तो तुम्हारा एफ जी ए इधर लगता, अट्रैक्ट होता ना, फिर ये वाला चार्ज नेगेटिव है तो ये इधर जाता, एफ जी ए यहाँ पे आता।
ये चार्ज इधर अट्रैक्ट होता, एफ जी बी यहाँ आता और एफ जी सी ये आता। तीनों फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है देविना? लेकिन फाइनल रिजल्ट वही रहेगा। क्यों वही रहेगा? उसका रीजन ये है कि तीन फोर्सेस, अब एक ये हो गया, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। थ्री फोर्सेस अगेन एट 120 120 120 इक्वल इन मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वुड बी जीरो। ये क्लियर हो गया सभी को? ओके। अब वापस के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं इसी क्वेश्चन के। जब सेंटर पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, देयर वाज नो चार्ज एट द सेंटर एंड देयर वाज अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, है ना? इस पे नेट फोर्स लग रहा था, हमने निकाल लिया था, इतना लग रहा था, √3 k² / a²। अगर मैं फोर्स बी पे निकालता तब भी सेम फोर्स आता, सी पे निकालता सब तब भी सेम आता। मतलब तीनों चार्जेस पे फोर्सेस लग रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर तुम इन चार्जेस को फिक्स नहीं करोगे तो क्या होगा? द थ्री चार्जेस विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड देन व्हाट हैपेंस? द चार्जेस विल मूव अवे फ्रॉम वन अनदर। ये हुआ कहने का मतलब, अगर तीन पॉजिटिव चार्जेस हमने वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पे रखे तो वो सिस्टम स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल हो। अनस्टेबल होगा, बिकॉज ऑल थ्री चार्जेस आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम वन अनदर। इस पे इधर नेट फोर्स लग रहा है, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। लेकिन सेंटर पे मैं कुछ भी चार्ज क्यों ना रखूं, एज लॉन्ग एज दीज थ्री चार्ज आर इक्वल, सेंटर वाला चार्ज हमेशा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में था। बात समझ में आ रही है? मतलब एज लॉन्ग एज दीज थ्री चार्जेस आर इक्वल of same nature, charge of the centroid, irrespective of its magnitude and nature, will be in equilibrium. लेकिन ये चार्जेस इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्लियर? अब माय क्वेश्चन फॉर यू इज, what should be magnitude and nature of the charge to be placed at the centroid so that the entire system is in equilibrium? लिखो, find nature and magnitude, find nature and magnitude of the charge to be placed at the center of the triangle such that the entire system is in equilibrium. उस चार्ज का नेचर भी निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? इस पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इस पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इस पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। एट द सेम टाइम जो चार्ज हम सेंटर पे रख रहे हैं, मान लो मैंने कैपिटल क्यू रख दिया, उस पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। चारों के चारों चार्जेस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो एक तो मैं ऑलरेडी मालूम है कि कैपिटल क्यू कुछ भी क्यों ना, उस पर तो नेट फोर्स जीरो होगा, अभी किया था ना। सिर्फ हमें ये देखना है कि ए पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स जीरो कैसे होगा। करो, हाउ वुड यू ensure that force on charge at A is zero? जब कैपिटल क्यू नहीं था तो ए पे और आपकी आवाज चली गई। now it's okay.
Yes, sir. मतलब हमें मालूम है कि कैपिटल क्यू चार्ज पे तो नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा ही होगा, बिकॉज तीनों वर्टिसेस पे सेम चार्ज है। ए पे नेट फोर्स कितना लग रहा था जब कैपिटल क्यू नहीं था? इन दोनों का, इसका फोर्स इधर था, इसका इधर था, इन दोनों का रिजल्टेंट हमने निकाला था √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। किया था ना पहले? किया हुआ ये। अब ये जो फोर्स है इसको तो दूर ले जा रहा है, तो क्यू की नेचर क्या होनी चाहिए ताकि दूर ना जाए? व्हाट शुड बी नेचर ऑफ क्यू? पता लग रहा है ना नेचर? शुड बी नेगेटिव, है ना? दिस चार्ज शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव होने से क्या होगा? नेगेटिव होने से ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये जो फोर्स है F ऑन A बिकॉज ऑफ G, इट विल बी डाउनवर्ड। नेचर ऑफ Q शुड बी नेगेटिव, so that FAG is acting downward, and if this FAG would exactly balance F of A, तो तुम्हें क्या करना है? सिर्फ FAG को FA से इक्वेट कर दो, कैपिटल Q का आंसर आ जाएगा। देखो अब क्या होगा, ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। FAG डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो समझ में आ रहा है ना? FAG इज एक्टिंग डाउनवर्ड, FA इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। दोनों इक्वल, दोनों ऑपोजिट, इक्वल कर दो। फॉर द सिस्टम, -√3 क्यू होगा। नेचर ने, हाँ, वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो FAG शुड बी सेम एज F ऑफ A, तो ताकि दोनों बैलेंस हो जाए, ये फोर्स और ये वाला फोर्स। FAG कितना होगा? K स्मॉल क्यू कैपिटल Q बाय A बाय √3। अब हमें रिजल्ट याद रखना है इसको हमेशा, एंड दिस इज √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। K कट जाएगा, एक Q कट जाएगा, ए स्क्वायर भी कट जाएगा, तो कैपिटल Q का आंसर आ गया, इट शुड बी Q बाय √3। एंड नेचर भी मैं बांधूंगा तो नेगेटिव लगा दो साइन। So this is the condition for the system to be in equilibrium। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहीं नहीं जाएगा, ना ये मूव करेगा ना ये तीनों मूव करेंगे, बिकॉज सब पे इंडिविजुअली नेट फोर्स जीरो है। अब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं मोर चार चार्जेस पे। अभी ट्रायंगल का किया था हमने क्वेश्चन, नाउ लेट्स डू द सेम क्वेश्चन फॉर, इसमें कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया? यस। ओके। स्क्वायर ऑफ साइड ए, each vertex charge Q, find net force on the vertex A। First part of the question, the square of side A, each vertex has charge Q, same nature, find the net force on the charge of the vertex A। करो खुद से। फिर क्या निकालना है? नेट नेट फोर्स ऑन ए, तो ए के सराउंडिंग में कितने चार्जेस हैं? तीन। तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन रखो, और फिर फाइनल आंसर बताओ। Net force on the charge at the vertex A।
नो हरी, आराम से कैलकुलेट वो कर लो, के टर्म में कर लेना। डायरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। सर फोर्स एफ ए बी टुवर्ड्स राइट होगा ना? टूवर्ड्स ए। राइट, एफ ए बी टुवर्ड्स राइट होगा ना? हाँ, you can also write it along BA. ओके। सर हो गया सॉल्व। हो गया। देविना, FAB कितना आ रहा है? सर FAB KQ²/A² आ रहा है। ओके। डायरेक्शन, यहाँ पे तो डायरेक्शन इधर या सर इधर? away from B, A to B। away from B। ओके, मतलब A का मोशन देखना है तुम्हें, इस पे फोर्स निकालना है, ये कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है, इधर जा रहा है? सर राइट साइड। ओके। नंदिनी, FAC बताना। सर KQ² by 2A²। ओके, बिकॉज यू फाउंड दिस डायगोनल विच इज √2 है। KQ²/2A²। परफेक्ट। इसका मोशन देखना है, ये कहाँ जा रहा है? अवे, है ना? FAD कितना हुआ काव्या? KQ² by A², डायरेक्शन। upwards। ओके। ये कितना एंगल होगा नाविक, जो मैंने मार्क किया है? तो हम रिजॉल्व कर लें या तो उसको, है ना? रिजॉल्व करके थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। बिना रिजॉल्व करके इजी हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं एंड दे आर एक्टिंग एट 90 डिग्री एंगल। तो रिजल्टेंट कितना होता है व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एट 90? √2 टाइम्स ईच। रिजल्ट लिखवाया था ना, whenever two vectors of equal magnitude act at 90 degree, resultant is always along perpendicular bisector and it is √2 times each. तो ये इजी होगा मेथड, so let's use this. So FAD और FAC का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा at 45 डिग्री, मतलब along FAC only, and will be √2 times FAB और √2 टाइम्स FAD। क्या हुआ दिव्या, तुम कहाँ थी आज? सर मैं टेस्ट लिखने गई थी तो फिर टाइम लग गया। चलो कोई बात नहीं, तुम बाद में वो देख लेना उसमें रिकॉर्डिंग में। तो अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नेट फोर्स होना, ये कितना हो गया? FAC प्लस √2 टाइम्स FAB। FA इज इक्वल टू FAC कितना है?
के क्यू स्क्वायर बाई 2a² प्लस √2 एफ ए बी इज के क्यू स्क्वायर बाई a². So नेट फोर्स ऑन ए कितना हो गया? के क्यू स्क्वायर बाई a² कॉमन ले लो, 1/2 प्लस √2, and it is along, क्या लिखेंगे डायरेक्शन? along CA. Perfect. So this is the first part of the question. अब इसका सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं? A charge minus capital Q लिखो. सेकंड पार्ट, a charge minus capital Q is placed at the center, is placed at the center. Find net force on this charge. Find net force on this charge and on the charge at A. Find net force on this charge and net force on the charge A. Net force on the charge at A. दो पार्ट हैं इसके. कर लो. माइनस कैपिटल क्यू रख दिया यहाँ पे हमने, ओ ले लिया मैंने इसको. Net force on A as well as net force on O. पहले किस पे निकाल रहे हो, ए पे या ओ पे? सर ए पे. ओके सर. ठीक है, ओ पे निकाल दो. सर फोर्स. 0 आएगा. डायरेक्शन दिखा दे वो, लेकिन यस. फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ बी का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ सी, फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ डी, चारों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा के क्यू कैपिटल क्यू. जब भी हम मैग्नीट्यूड फोर्स निकालते हैं चार्ज का साइन नहीं लेते. ये पूरा डिस्टेंस √2 ए था तो उसका आधा करना पड़ेगा मुझे, √2a/2 का होल स्क्वायर. दिस इज 2k/q कैपिटल Q बाय a². ये आ रहा होगा ईच फोर्स. अब हम इसका डायरेक्शन देखते हैं 1/1, क्योंकि डायरेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी तो इजी है. नाविका बताओ, फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ ए का डायरेक्शन, ओ पे ए की वजह से.
किधर होगा? टूवर्ड्स सी। ओ पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव क्यू की वजह से कहाँ जाएगा? सी की तरफ क्यों जाएगा? सर टुवर्ड्स ए जाएगा। अट्रैक्ट होगा ना, इससे नेगेटिव चार्ज दिस टाइम। यस, इट बी टुवर्ड्स ए। सो इट, इसका मोशन देखिए, ये नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहा है, ये ऐसे जाएगा। फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ ए। दिव्शा, ओ भी बताना। फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ बी। बी की टूवर्ड्स। बी के टुवर्ड्स एफ ओ बी। ये हो जाएगा एफ ओ सी, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो पेयर वाइज ये फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। दीज फोर्सेस विल कैंसिल आउट, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। मतलब as long as the charges at the vertices are equal, irrespective of the magnitude और nature of charge, अगर मान लो पॉजिटिव होता तो फोर्स उल्टे हो जाते, फिर भी नेट फोर्स जीरो होता। दिस चार्ज वुड बी इन इक्विलिब्रियम। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करो, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए। नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट ए निकालो। देवीना, ए पे कितने फोर्स लग रहे हैं? नेट कितने टोटल फोर्स लग रहे हैं ए पर? 3, 2, 1, 4, 5, बताओ। चार्ज एट ए पे कितने टोटल फोर्सेस हैं? सर फोर। जोर से बोलो। सर फोर। 4 लग रहे हैं ना? एफ ए बी हो गया, एफ ए सी हो, एफ ए डी हो, एक और कौन सा? एफ ए ओ, है ना? दैट विल बी के क्यू क्यू बाय ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर, हो जाएगा। एफ ए ओ का डायरेक्शन क्या होगा नंदिनी? एफ ए ओ का डायरेक्शन बाकी तो हमें ऑलरेडी मालूम है। एफ ए टुवर्ड्स ओ। टुवर्ड्स, हो क्या बात कर रही हो? पक्का? ऐसा मत बोलो। तो अंदर ही तो जाएगा, नेगेटिव के पास ही तो जाएगा। काव्या, तुम बताओ सही आंसर। सर ए से टुवर्ड्स ए से टुवर्ड्स ओ। ओ, तुम्हारा भी वही आंसर है? हाँ। ठीक है, ये पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एफ ऑन ए बिकॉज ऑफ ओ। ये हो गया, ये पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इन तीनों का रिजल्टेंट तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, है ना? कितना था ये निकाला हुआ है तुमने यहाँ पे। ये उसके ऑपोजिट है, तो कौन सा फोर्स बड़ा है हमें तो पता तो लग नहीं पाएगा, बिकॉज वैल्यूज नहीं पता ना हमें। तो हम मान लेते हैं कि सपोज वो वाला फोर्स बड़ा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स हो जाएगा दिस वैल्यू जो हमने ऑलरेडी निकाली हुई थी, ये के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1/2 प्लस रूट टू, माइनस इसको करना पड़ेगा ए हुए 2k क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। नाविका, ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इसी क्वेश्चन में अगर होता कि व्हाट शुड बी नेचर एंड magnitude of the charge at the center so that this entire system is in equilibrium, तो क्या करते हैं अब? हम्म इक्वेट कर देते हैं equate this to 0,
बिकॉज ये तो बचपन से इक्विलिब्रियम में है। देखा ना तुमने, यहाँ पे कुछ भी चार्ज रखो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, एज लॉन्ग एज दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसकी प्रॉब्लम थी, इसमें नेट फोर्स अभी लग रहा है, तो अगर इसका नेट फोर्स हम जीरो कर दें तो हमें कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। नेचर में बताइए ऑलरेडी नेगेटिव होना चाहिए। इसका नेक्स्ट पार्ट लिखो, व्हाट शुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एट द सेंटर, what should be magnitude of the charge at the center such that the entire system is in equilibrium, such that the entire system is in equilibrium. इसको जीरो से इक्वेट कर दो और कैपिटल क्यू निकाल लो। दिस क्वेश्चन वाज देयर इन बोर्ड्स, कई बार प्री बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन, और नॉर्मल यूनिट टेस्ट में भी आ जाता है अक्सर। इसको जीरो से इक्वेट कर दो, कैपिटल क्यू निकाल लो। सर नेगेटिव आएगा। हाँ नेगेटिव आएगा, बिकॉज नेचर नेगेटिव है ना, उसके ऑपोजिट नेचर होना चाहिए। तो नेगेटिव साइन हम खुद प्लेस कर देते हैं, शुड बी क्यू इंटू 1/4 प्लस 1/√2, यही आ रहा है देखना। यस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। two charges two charges are placed at some distance, two charges are placed at some distance in vacuum, and the force between them is F, capital F. Two charges are placed in vacuum at some separation A ले लो, at some separation A, and the force between them is capital F. आगे लिखो, now distance between them is halved, and magnitude of each charge is made 3 times. Distance between them is halved and magnitude of each charge is made thrice. And the system is again placed in vacuum. Find the force. कर लो। थर्टी सिक्स एफ। 36 एफ। 36, एफ। okay.
ये फर्स्ट सिचुएशन थी जो मैं गिवन थी, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by a² है ना। अब हमने क्या किया, फोर्स हमारा मान लो एफ डैश हो गया, वैक्यूम में ही रखा है तो ये सेम रहेगा, एंड ईच चार्जेस मेक ट्वाइस और थ्री टाइम्स 3Q1 हो गया, 3Q2 हो गया, डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया। So f dash will be 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by a² into 3 into 3 9 9 into 4 36। या तो दोनों को डिवाइड कर दो या इसको रिप्लेस कर दो। So the new force is 36 times F। इसका नेक्स्ट पार्ट लिखो। सर आपकी आवाज कम आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत नाइंसाफी है। अब आ रही है? सर अभी भी हाँ, अभी भी कम आ रही है। या तो तुम ट्रैवल कर रही हो इसलिए हो सकता है। बाकी लोगों को आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ सर आ रही। वो हो सकता है सृष्टि, तुम ट्रैवल की वजह से हो सकता है। Yes, sir. अब इसका नेक्स्ट पार्ट लिखो। नाउ द सेम सिस्टम लिखो। नाउ दिस सिस्टम इज प्लेस इनसाइड ए मीडियम। नाउ दिस सिस्टम इज प्लेस इनसाइड ए मीडियम and the force becomes F by 5, F divided by 5. What is the relative permittivity? What is the relative permittivity and permittivity of the medium? What is the relative permittivity and permittivity of the medium? दिस सिस्टम मतलब लाइक चेंज। मतलब ये वाला, हाँ, चेंज वाला सिस्टम। एप्सिलॉन आर निकालना है, एप्सिलॉन भी निकालना है। सर चेंज्ड सिस्टम। चेंज सिस्टम जो प्रीवियस क्वेश्चन में था ना, ये वाला, इसी सिचुएशन में हमने इसको मीडियम में डाल दिया। सर इसका जो नया सिस्टम है वो रिलेटिव 36F का 1/5। तो आपने जो F/5 लिखा है वो F'/5 है या नहीं F? नहीं नहीं, देखो, इनिशियली फोर्स एफ था, डिस्टेंस सेपरेशन ये था, फिर हमने सेपरेशन चेंज करके ये आ गया सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में इस फोर्स को हमने मीडियम में रख दिया एंड द फोर्स हैज बिकम F/5। मतलब इस सेकंड सिचुएशन में मान लो फोर्स हमारा F डबल डैश है, वो हो गया ओरिजिनल फोर्स का F/5। ये है। मीडियम में रखने के बाद फोर्स हैज बिकम F/5, F इज द ओरिजिनल वन। याद आ रहा है फॉर्मूला? ER 180 आ। 180। F डबल डैश क्या होगा? 1/4 पाई
एप्सिलन, ठीक है। चार्ज को हमने 3 टाइम्स कर दिया था, ईच डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया था। ये हमारा एफ डबल डैश है। नोटिस द चेंज, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिख दिया। इज इक्वल टू 1/5 इंटू एफ। एफ क्या है? एफ वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/a²। ये समझ में आ रही है बात देविना? क्योंकि इस सिचुएशन में था ना, सिर्फ मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होने से एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ गया बस। एफ तो तुम्हें ऑलरेडी मालूम ही था, ये था। तो Q1 Q2 कट गया, a² कट गया, Q1 Q2 a², 4 पाई कट जाएगा। सो दिस इज 36 इंटू 5। एप्सिलॉन को उधर ले जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे। एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। 180 आ गया एप्सिलॉन आर। सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज 180। दिव्या, इसका यूनिट क्या होगा एप्सिलॉन आर का? यूनिट लेस। यूनिट लेस। एंड एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी? 8.85। यहीं से आ जाएगा, 180 इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। 1.59 into 10⁻⁻9। एप्सिलॉन नॉट कितना? 8.86 10⁻⁻12। 12। दोनों वैल्यूज आ गई। तो मीडियम में जब भी हम किसी चार्जेस को रखते हैं तो फोर्स हमेशा रिड्यूस होता है। ठीक है, आगे बढ़े, हो गया। रेगुलर हेक्सागन है एक, रेगुलर हेक्सागन में इंटीरियर एंगल कितना होता है? 120। 120। वैसे याद कर लेना, sum of interior angle of any polygon of n side is always n-2 into 180। किसी भी रेगुलर पॉलीगन हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इतना होता है। अगर रेगुलर होगा तो ईच एंगल कितना हो जाएगा? ईच इंटीरियर एंगल वुड बी टोटल एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। तो n को अगर तुम 6 रिप्लेस करोगे तो ये 120 डिग्री आता है। दूसरी बात, किसी भी रेगुलर हेक्सागन में ये सारे के सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल होंगे। ऑल दीज ट्रायंगल्स विल बी इक्विलेटरल। तो चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। यहाँ पे एक और चार्ज Q ले लो। I place 6 charges. Find the net force at O. सारे के सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल होंगे ये। सर ये एफ पे क्यू है। F पे कुछ नहीं है। Only 6 charges are there. 5 vertices पे रखे हुए हैं, एक सेंटर पर। के क्यू स्क्वायर बाय ए रूट 3। A√3 क्यों? 3 सॉरी 3 होगा, 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। फोर्स ऑन O बिकॉज ऑफ A लगेगा, फोर्स ऑन O बिकॉज ऑफ B लगेगा,
इन सब का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। एंड ई ऑल्सो। एफ पे कोई चार्ज नहीं, कोई फोर्स नहीं लगेगा, एंड ऑल दीज विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। 5 फोर्सेस लग रहे हैं। डायरेक्शन कैसे देखोगे? एफ ओ ए, कौन बता रहा है? संबित बताना। एफ ओ ए के क्यू स्क्वायर नहीं नहीं, डायरेक्शन। एफ ओ ए फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ ए, ये पॉजिटिव सर आउटवर्ड टुवर्ड्स अवे लेफ्ट। फ्रॉम इट ना, ये ऐसे जाएगा। एफ ओ बी बताना। नाविका तुम बताओ। एफ ओ बी। टुवर्ड्स। एफ ओ बी की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। एफ ओ बी हो गया। देविना एफ ओ सी बताना। सर FOC अवे फ्रॉम सी होगा। अवे फ्रॉम। अवे फ्रॉम सी। इसका डायरेक्शन बताओ, ये किधर जा रहा है? ये चार्ज सी की वजह से, लेफ्ट साइड जाएगा। हाँ। एफ ओ डी किधर होगा दिव्या? FOD A के टुवर्ड्स होगा। ओके। सृष्टि एफ ओ ई किधर होगा? सृष्टि आवाज आ रही है? सर आवाज अभी भी कम आ रही है सर आपकी। अच्छा अच्छा। सर टुवर्ड्स अवे फ्रॉम ई टुवर्ड्स। ओके, तो नाउ यू सी, दो दो फोर्सेस पेयर वाइज आपस में कैंसिल हो गए, सिर्फ एक ही फोर्स बच रहा है। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, ओनली दिस फोर्स इज देयर, सो नेट फोर्स ऑन ओ वुड बी एफ ओ सी, एंड दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन इज along ओ एफ। ये नेट फोर्स है। Now, if I place a charge small q at f, इसका second part. The question is, what is the net force on q at f? Find net force at q placed at f. f पे हमने एक और चार्ज रख दिया स्मॉल q, तो अब f इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा? इसका हाफ डायगोनल भी A होता है। कौन सा? हेक्सागन का डायगोनल 2A होता है। हाँ, बिकॉज सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ये। ए ए तो 2 हो गया, ये भी 2 है, ये भी 2 है। हेक्सागन में रेगुलर हेक्सागन में सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल होते हैं, सबकी साइड ए होगी। तो अब एफ पे कितने फोर्सेस लगेंगे? सारे फोर्सेस का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। 6 फोर्सेस होंगे, फिर उनका डायरेक्शन देखना पड़ेगा, फिर उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इट विल बी बिग क्वेश्चन, कर लो आराम से, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो सबके।
ये सही लिखा देवी ना मैंने, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं? No, sir. यस और नो? Yes, sir. ओके। एफ बी और एफ डी डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस A कैसे? root 3. हम्म। A root 3 होगा. ए रूट 3। Yes. मैं तुम्हें एक रूल बताता हूँ, कोसाइन रूल, वो बहुत काम आता है। अगर हमें किसी ट्रायंगल में साइड दे रखी है, ए के ऑपोजिट सपोज ए है, बी के ऑपोजिट बी है, सी के ऑपोजिट सी है, और मुझे एंगल ए निकालना है, कॉस ए। कॉस से क्या होगा? एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर का सम माइनस ऑपोजिट साइड को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। तो यूजिंग दिस वी कैन फाइंड ईदर साइड और एन एंगल। सिमिलरली कॉस बी भी निकल सकता है, बी में आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं कॉस बी निकालना है तो ये जाएगा सी, बी के एडजेसेंट साइड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऑपोजिट साइड बी स्क्वायर बाय 2ac। तो इस ट्रायंगल में इफ यू वांट यू कैन अप्लाई दिस। ये है 120 डिग्री, ये ए है, ये ए है, ये एक्स है। तो मैं एक्स फाइंड करना है। रिजॉल्व करके भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। तो इफ आई अप्लाई कोसाइन रूल, तो कॉस 120 कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2a इंटू ए, दैट इज 2a स्क्वायर। कॉस 120 कितना होता है? -1/2। -1। याद कर लो, सोते जागते हंसते खाते इसमें याद होना चाहिए, कॉस 120 माइनस हाफ। तो देखो 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर आ गया 3a स्क्वायर। तो √3 इसका आंसर है। दूसरा मेथड होता कि हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते, ये एंगल हो जाता 60 डिग्री। हाइपोटेन्यूज मालूम है तो परपेंडिकुलर हमेशा होता है a sin 60, बेस हो जाता a cos 60, और फिर पाइथागोरस लगा के x आ जाता हमारा। तो ऐसे भी कर सकते थे। तो कोसाइन रूल बहुत काम का है। सो एफ एफ डी और एफ एफ बी विल बी के क्यू स्क्वायर बाय 3a स्क्वायर। अब नेक्स्ट पार्ट होगा, इसका डायरेक्शंस देखनी पड़ेगी हमें सबकी। सबकी डायरेक्शन देखेंगे, उसके उसको रिजॉल्व करेंगे एंड फिर आंसर निकालेंगे। बाकी दो फोर्स, अब फोर्सेस की डायरेक्शन बता देखते हैं। एफ ओ एंड एफ एफ सी क्या डायरेक्शन है? एफ एफ ओ, ये चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इट विल बी लाइक दिस, एफ एफ ओ। एफ एफ सी भी यही होगा। ये सबसे इजी थे, तो सेम डायरेक्शन में आ गए। बाकी अभी कितने फोर्सेस बाकी हैं? 4 फोर्सेस हैं। तो अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन होमवर्क की तरह है। बाकी चार्जेस, 4 फोर्सेस को तुम ड्रॉ करके दिखाओगे, उनको रिजॉल्व करोगे,
और फिर उनका रिजल्टेंट निकालोगे, रिमेनिंग 4 फोर्सेस, एंड देन रिजॉल्व कैसे करोगे? You can draw a vertical line over here and then resolve. तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल सारे फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे. नेक्स्ट क्लास में few more questions on electrostatic, then I'll start with electric field. ठीक है, और आज रिवाइज जरूर कर लेना, चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो. ठीक है काव्या, एंडिंग द क्लास. Thank you, sir. बाय.